میں خود بھی اس کے حق میں نہیں ہوں. اس لیے ایک آدمی کی جب آپ شادی کر رہے ہیں نا, شادی اسلام کے حوالے سے اس کے اوپر پھر اگر وہ قیامت تک مرنے تک ماں باپ کے ساتھ رہے اور اس کے احترام میں رہے اور اس کے خدمت میں رہے, تو یہ اس بچے کا بہت انتہائی مہربانی بھی ہے اور سعادت مندی بھی ہے اور فرائض بھی شامل ہے. لیکن اگر وہ نہ رہے تو اس کا دماغ بھی پختہ نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے. آپ 18 سال کی عمر میں اس کے اوپر اتنا بڑا ذمہ داری ڈالتے, اس دور میں آیا اس کے پاس کوئی نوکری بھی اسی طرح سیٹ نہیں ہے, وہ کاروبار میں بھی سیٹ نہیں ہے, وہ کوئی اتنا معاشرے کے رنگ رواج سے بھی واقف نہیں ہے, وہ جناب کوئی تنگی تکلیف سے بھی واقف نہیں ہے, تو ان کا وہ 3-4 مہینے تو خوشی خرم گزر جائے گا. لیکن دیکھو ہم معاشرے میں کرتے زیادتی. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, آپ نے ایسے تار چھیڑا ہے مجھے یہ بات, لیکن میں پورا پاکستان کو لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ تمہارا گھر اللہ اسی طرح خوش و خرم رکھے جیسے میں 4 بہو میرے ساتھ گھر میں رہ رہے. میں ان کو بیٹی کہتا ہوں, مجھے باپ کہتے, وہ میرے وائف کو ماں کہتے ہیں, وہ ان کو بچی کہتے. میں یہ کبھی بھی اس بات سے ڈس ایگری کروں گا کہ 18 سال کے بعد شادیاں فلاپ ہوتی ہیں. فلاپ معاشرتی برائیوں کی وجہ سے, ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ہمارے مذہب, ہم اپنے اخلاقی اقدار سے بہت دور چکے ہوئے ہیں. دیکھیں شادیاں اگر آپ دورے رسالت دیکھیں تو یہی شادیوں کی عمر تھی. بیسک وجہ کہ ہم نے اپنی غیر ضروری ضروریات جو ہے نا, ہم نے اپنے ایک ساتھ اس کے اور میں جو اپنا تجربہ کر رہا ہوں, میں نے 1 سال تک, یہ میں تمام دنیا کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں جب بچے کی شادی کر لو گے نا, کسی پڑوسی عورت کو آپ دن کے 2 بجے سے پہلا کبھی بھی گھر میں انٹر مت ہونے. ابھی تک بہو تیرا اٹھا نہیں ہے. وہی ہم تو اس دور میں جو نا پورا گھر کو جھاڑو لگاتے تھے, پورا برتن مانجتے تھے, پورا کام کرتے تھے. ایک دم ادھر ساس کا دماغ, اچھا وہ اس کو اپنا ہاتھ میں لے لو, اس کو اختیار مت دے دو. کوئی پڑوس کا عورت پراٹھا اور مٹھائی اور بسکٹ نہیں, اگر سونا بھی لے کر آئے اور میں نے اس کو دن کو 2 بجے سے پہلا اپنا گھر دے کے, تو میں تمہیں طلاق دوں گا. اس کا وجہ بچہ یہ چیزیں کیسے کور کرے گا؟ دیکھیں مغل صاحب, اگر آج کل کے آپ کی دور کی بات کر رہے ہیں تو آج کل میرا یہ ماننا ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی میچور ہے. ہاں وہ جو یہ آپ میچور کیسے, ایسا 10 سال کا بچہ آج کل دیکھیں موبائل لے کے پارکوں میں پھر رہے ہیں, انہوں نے گھر کیسے بات کرنے ہیں؟ دیکھیں میچور کی انہوں بات, نے گھر کیسے بات کیا؟ میچور وہ ہے جو اپارا مارکیٹ میں اپنے باپ کے ساتھ شاپ پہ بیٹھا ہوا ہے, بالکل, جو کاروبار کر رہا ہے. جو 15 سال کا بچہ پارک میں گھوم رہا ہے وہ کبھی میچور نہیں ہے اور وہ اپنے گھر کو کبھی نہیں چلا سکتا. شادیوں کا ناکام ہونے کا میچور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. شادیاں ناکام صرف عزت خان لالا والی بات ہے کہ وہ معاشرتی برائیوں کی وجہ سے شادیاں خراب ہو رہی ہیں, ساس سسر فیملی کے انٹرفیئر کی وجہ سے, کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے, اس وجہ سے شادیاں فلاپ ہوتی ہیں. جس گھر میں فرسٹریشن ہوگی, انکم نہیں ہوگی, روزگار نہیں ہوگا, تب اختلاف, تب پھر یہ گھروں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. گھر کے طرف سے جہاں پر سس ہوتے, اگر سس اپنے بہو کو بیٹی سمجھ کے رکھے نا, تو کبھی گھر خراب نہیں ہوتے. اور ادھر میں آپ کو مزے کی بات ہے, مجھے آپ کا شیشے پہ اگر یہ کہ لطیفہ آپ کو سناؤں. ایک بچے کو ماں باپ جو شریف لوگ ہیں یہی سمجھاتے کہ بچے آپ کا گھر, اس نے کہا اگر آپ کے شادی والا رات اگر آپ کو خاون سونا دے دے نا. کا میزبان شوکت مغل, اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو. وائس آف پاکستان اردو آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ. وہ سٹوری کیا ہے کہ اس موجودہ دور میں جب بچہ 16 سے 18 سال کا ہوتا ہے اس کی شادی کر دی جاتی ہے. جب 5 سے 7 لاکھ روپیہ آتا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں جی کہ ہم شادی کر رہے ہیں بچے کی. وہ شادی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سینئر تجزیہ کار, سینئر سیاست پر نظر رکھنے والے, ایک منجے ہوئے مزدور یونین کے سینئر وائس پریزیڈنٹ عزت خان لالا, اور وائس آف اسلام آباد سے تجزیہ کار چودھری عاطف صاحب. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ عزت خان لالا, جی سر, آپ سے میں ابتدا کرتا ہوں. سر یہ ماجرا 95% ہے کہ 18 سال کے بچے کو جب شادی کراتے ہیں, وہ شادی تقریباً 2 یا 3 ماہ کے بعد بربادی ہو جاتی ہے. بہت شکریہ شوکت مغل صاحب, انتہائی مہربانی و شکر گزار ہوں آپ کا. ہم خود اس مرحلوں سے گزرے کیونکہ میں خود بچوں والا ہوں. 4 بچوں کا میں نے شادی کیا, 4 لڑکوں کا اور 3 لڑکیوں کا.
लेकिन मैं खुद भी इसके हक में नहीं हूँ। इसलिए एक आदमी की जब आप शादी कर रहे हैं ना, शादी इस्लाम के हवाले से, उसके ऊपर फिर अगर वो क़यामत तक मरने तक माँ बाप के साथ रहे और उसके एहतराम में रहे और उसके खिदमत में रहे, तो ये उस बच्चे का बहुत इंतहाई मेहरबानी भी है और सादतमंदी भी है और फ़राइज़ भी शामिल है। लेकिन अगर वो न रहे तो दुनिया का कोई आलिम ले आओ मुझे बता दो, उसके ऊपर सस का कोई हक नहीं है, उसके ऊपर दूसरा ससुराल वाला को कोई हक नहीं है। वो लड़का और लड़की बाइख्तियार है, आज़ाद है कि वो अपना ज़िंदगी कैसे गुजारे, वो कहाँ गुजारते। तो आप जब 18 साल के बच्चे को, 18 साल की उम्र में तो उसका दिमाग भी पुख्ता नहीं है, ठीक है, आप 18 साल की उम्र में उसके ऊपर इतना बड़ा जिम्मेदारी डालते। इस दौर में आया, उसके पास कोई नौकरी भी उसी तरह सेट नहीं है, वो कारोबार में भी सेट नहीं है, वो कोई इतना माशरे के रंग रिवाज से भी वाकिफ़ नहीं है, वो जनाब कोई तंगी तकलीफ से भी वाकिफ़ नहीं है। तो उनका वो 3-4 महीने तो खुशी खुरम गुजर जाएगा, लेकिन बाद में उसको ये भी पता नहीं चलता कि भाई ये जो मैं किसी का बच्ची लेकर आया हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर कितना बड़ा एतमाद किया, या मेरा बाप भी किया या मेरा माँ भी किया। तो उनके लिए तो मामूली सा झगड़ा भी जो इस पर झगड़ा हो जाते हैं कि जनाब वो कहते हैं जनाब आज हमने होटल में खाना खाना है, वो कहते हैं नहीं आज घर में खाना है, नहीं जी आज हमने कोई सिनेमा देखने, वो कहते हैं नहीं देखने, आज बर्गर मच्योर नहीं है, तो उनमें अक्ल नहीं है। ये कम अज़ कम 25 एंड एबा होना चाहिए ताकि दोनों पार्टी मैच्योर हों और उनको माँ बाप का भी पता हो और आगे ससुराल का भी पता हो कि उस लड़की का भी। देखो हम माशरे में करते ज़्यादती, मैं आपको हकीकत बताऊँ, आपने ऐसे तार छेड़ा है मुझे ये बात, लेकिन मैं पूरा पाकिस्तान को लोगों को कह रहा हूँ कि तुम्हारा घर अल्लाह इसी तरह खुश खुरम रखे जैसे मैं 4 बहू मेरे साथ घर में रह रहे, मैं उनको बेटी कहता हूँ, मुझे बाप कहते, वो मेरे वाइफ को माँ कहते हैं, वो उनको बच्ची कहते हैं। आपके घर टीवी तक नहीं है, लेकिन टीवी तक नहीं है, ये मैं बताऊँ। ये खान लाला बात ये है कि KPK के अंदर एक असूल है, जो लोग इज़्ज़त वाले हैं उन्होंने अपने एक सिस्टम बनाए हुए हैं, जो लोग सिस्टम से बाहर हैं वो ज़ील व रसवा हो रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। जो सब आप क्या कहते हैं इस वाले से? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुगल साहब। मुगल साहब आपका बुनियादी क्वेश्चन था कि 18 साल के बाद शादियाँ क्यों फ्लॉप हो रही हैं। देखें जहाँ पे मैं इज़्ज़त खान लाला की बात से थोड़ा इख्तलाफ रखूँगा, फ्लॉप नहीं हो रही। आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी हमारा जितना KPK है, जहाँ पे मज़हब का रुझान है वहाँ पे फ्लॉप नहीं हो रही, जहाँ पे मज़हब नहीं है वहाँ पे वो ये दूसरे ये माशरती बुराइयाँ देख के फ्लॉप हो रही हैं। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हमारे में ना, मैं ये कभी भी इस बात से डिसएग्री करूँगा कि 18 साल के बाद शादियाँ फ्लॉप होती हैं। फ्लॉप माशरती बुराइयों की वजह से, उनकी वजह से हो रही हैं। हमारे मज़हब, हम अपने अखलाकी इक़दार से बहुत दूर चुके हुए हैं। देखिए शादियाँ अगर आप दौरे रसालत देखें तो यही शादियों की उम्र थी। बेसिक वजह कि हमने अपनी गैर ज़रूरी ज़रूरियात जो है ना, हमने अपने एक यहूदी कल्चर में अब जा चुके हैं। मज़हब के करीब रहेंगे तो ये कामयाब होंगी, अदरवाइज़ तो 55 साल में भी नाकाम हो रही हैं। आप क्या करें, 18 साल का 40 साल में भी नाकाम हो रही हैं, 65 साल में भी 4-4 शादियाँ हो रही हैं। मज़हब की कमी है। इज़्ज़त खान लाला जी सर, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी सोच है, जो हमारे बड़े हमें कहते थे, वो चीज़ें आज सामने आ चुकी हैं, मैं देख रहा हूँ उन चीज़ों को। हमारे बड़े ये कहते थे कि बच्चा 24 से 25 साल की उम्र में जाए, वो मैच्योर हो जाए, वो शादी का वज़न अपने ऊपर सह ले, वो बर्दाश्त कर ले, वो समझ सके कि ये मेरी सस है, ये मेरी साली है, ये मेरा बहन है, इसका दर्जा फ़लाँ है, इसका दर्जा फ़लाँ है, फिर वो पाया तकमील तक पहुँचते हैं। बिल्कुल यही वजह है। और एक साथ इसके एक और मैं जो अपना तजुर्बा कर रहा हूँ, मैंने 1 साल तक, ये मैं तमाम दुनिया के लोगों को कह रहा हूँ कि आप अपने घर में जब बच्चे की शादी कर लोगे ना, किसी पड़ोसी औरत को आप दिन के 2 बजे से पहला कभी भी घर में एंटर मत होने दो। वो माँ जो बच्चे की शादी के लिए बड़े डांस करते और बड़ा खुशी मनाते, पड़ोसी 2 औरत आ जाते, सुबह सवेरे आ जाता है, या 7 बजे, 8 भाई आपने उसकी शादी किया, वो जवान है, उन्होंने रात को शायद जगराते हो, सुबह नमाज अगर उसने पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो 11 बजे 10 बजे सोए, वो औरत आएगा, पता है क्या कहेगा, अभी तक बहू तेरा उठा नहीं है,
वही हम तो इस दौर में जो ना पूरा घर को झाड़ू लगाते थे, पूरा बर्तन मांजते थे, पूरा काम करते थे, एकदम इधर सस का दिमाग, अच्छा ओए इसको अपना हाथ में ले लो, इसको इख्तियार मत दे दो, गोरे घर का ख्याल रखो, कहीं आपका घर का सफाई ना करे। खुदा की कसम मैंने अपने वाइफ को कहा कि अगर कोई पड़ोस का औरत पराठा और मठई और बिस्कुट नहीं, अगर सोना भी लेकर आए और मैंने इसको दिन को 2 बजे से पहले अपना घर देखे तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। उसका वजह भाई ये 1 साल ये मेरा बहू नहीं है, ये मेरा मेहमान है, ये मेरा बेटी है, ये जो मेरा बेटा है 1 साल मैंने इसको काम पे फ्री कर दिया। इधर से पता है क्या बात सुनो, एक लफ्ज़ मेरा, आज उसकी शादी हो गया, 10 दिन के बाद कभी भाई बड़ा आ जाते, कभी बाप आ जाते, ओए तो अभी तक सोया हुआ है, वही तो काम पर नहीं गया, वही तेरा अब शादी होगा, वही मेरे ऊपर कर्ज आ गया, न करना था शादी। जी बिल्कुल, अपना इज्जत खान लाला को मौका दो। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं कि आने वाले जो नौजवान हैं उनके लिए, उनकी तरबियत के लिए, ऐसी तरबियत अगर जिस बच्चे के पास हो वो ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकता, नहीं होते। तो साहब आपने, ठीक है हर इंसान का हक है इख्तिलाफ करना, क्या जिस बच्चे ने 18 साल की उम्र में शादी की है क्या वो मचोर है? क्योंकि शादी करने वाला उस इतना मचोर होना चाहिए कि उसने अपनी बीवी को भी कवर रखना है, उसने अपनी माँ को भी कवर रखना है, उसने अपने बाप को भी कवर रखना है, उसने अपने बच्चा ये चीज़ें कैसे कवर करेगा? देखिए मुगल साहब, अगर आजकल के आपकी दौर की बात करें तो आजकल मेरा ये मानना है कि 10 साल का बच्चा भी मैच्योर है। हाँ वो जो ये आप मैच्योर कैसे? ऐसा 10 साल का बच्चा आजकल देखे मोबाइल लेके पार्कों में फिर रहे हैं, उन्होंने घर कैसे बात करने हैं? देखें मैच्योर की बात, उन्होंने घर कैसे बात किया? मैच्योर वो है जो अपारा मार्केट में अपने बाप के साथ शॉप पे बैठा हुआ है, बिल्कुल, जो कारोबार कर रहा है, जो 15 साल का बच्चा पार्क में घूम रहा है, वो कभी मैच्योर नहीं है और वो अपने घर को कभी नहीं चला सकता। वो बात सही कर रहे यार मैं बात ठीक कह रहा हूँ। अच्छा मैं कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा हूँ, बिल्कुल, हदीस के बगैर मैं बात नहीं करता हूँ, दलील के बगैर मैं बात नहीं करता हूँ। कोई मेरे पे सवाल करे, उस सवाल का मेरे पास जवाब ना हो। मैं आपको आप ये ना कहेंगे 10 साल का बच्चा मैच्योर होता है। नहीं मैच्योर आजकल 95% नाकाम शादियाँ हो रही हैं। प्रोग्राम का वक्त करीब है, आप अपना क्वेश्चन सवाल करें। देखिए शादियों का नाकाम होने का मैच्योर उससे कोई तल्लक नहीं है। शादियाँ नाकाम सिर्फ इज़्ज़त खान लाला वाली बात है कि वो माशरती बुराइयों की वजह से शादियाँ ख़राब हो रही हैं, सास ससुर फैमिली के इंटरफेयर की वजह से, कारोबार ना होने की वजह से, इस वजह से शादियाँ फ्लॉप होती हैं। जिस घर में फ्रस्ट्रेशन होगी, इनकम नहीं होगी, रोज़गार नहीं होगा, तब इख्तलाफ, तब फिर ये घरों के मसाइल पैदा होते हैं। वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र में शादी फ्लॉप होना, उसका इस चीज़ से तल्लुक़ नहीं है। हमारे जो अपने जो कारोबारी मसाइल हैं या घरेलू मसाइल है, इस वजह से। जी नाज़रीन, आपने एक 30 सेकंड आपका लेता हूँ। ये हमारा पठानों के आखिरी पैगाम, मैं कोई ये नहीं कुछ हमको इस्लामी है, हमारा रिवाज इस किस्म के है कि हम बच्चे को बार बार समझाते कि आपका एक दफ़ा आपको डोली में बैठा दिया, आपका घर हमने आबाद कर दिया, आगे किस्मत तुम्हारा अल्लाह के हाथ में है, तूने अपना घर खुद रखना है। हमारे जो माज़रत के साथ हमारा पंजाबी भाई ऐसा नहीं करते, ये उसको कहते वही आपको खाने को कुछ नहीं देते, वही आग तो रंग तो पीला हो गया, वही आपको तो इधर ऐसे था, उसको दाद देते। और फिर घर के तरफ से जहाँ पर सस होते, अगर सस अपने बहू को बेटी समझ के रखे ना तो कभी घर ख़राब नहीं होते। और इधर मैं आपको मज़े के बात है, मुझे आपका शीशे पे अगर ये कि लतीफ़ा आपको सुनाऊँ, एक बच्चे को माँ बाप जो शरीफ लोग हैं यही समझाते कि बच्चे आपका घर, उसने कहा अगर आपके शादी वाला रात अगर आपको खावन सोना दे दे ना, सोने का कोई गिफ्ट दे दे, तो आप उनको कहे आप सोने का गिफ्ट क्यों देते हैं, मेरे लिए तो आप ही सोना है। फिर अगर आपको कोई भी दुनिया का कोई कीमती गिफ्ट दे दे तो आप उसको कहे इसकी क्या ज़रूरत है, मेरे तो सब कुछ आप ही है। वो बंदा था कोई बेवकूफ़ सा, उसने जेब में जनाब वो कोक का बोतल ही लेके चला गया। बच्चे के दिमाग में तो वही बात था जो माँ ने उसको समझाया। उसने जब उसको आगे कोक पेश किया तो आगे से बेगम ने उसको बोला कि आया तुम बोतल क्यों पेश करते, मेरे लिए तो आप ही बोतल है। बस इस पैगाम की ये तरबियत है। आपने ये प्रोग्राम सुना है और समझने की कोशिश करना। देखें, मैंने वो लोग भी देखे हैं अपनी आंखों के सामने, जेज में कारें भी आई, जेज में बड़ी बड़ी चीज़ें आई, जेज में 50-50 तोले सोना भी आया, लेकिन 6 महीने भी मामला तोड़ ना जा सका। इसमें समझने की ज़रूरत है माँ बाप। लेकिन जो बच्चे हैं उन बच्चों को मैच्योर होना,
ان بچوں کو اپنے ماں باپ کو لے کر چلنا، اپنی برادری کو، اپنے خاندان کو لے کر چلنا، یہ اس کی ایک ذمہ داری اور اپنی سوچ، اپنی سمجھ کی بات۔ جب آپ ایسا کام کریں گے تو آپ کا برادری میں نام نکلے گا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے کے لیے اچھے کام کیجئے، اور کوشش کریں کہ کوئی شخص آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق یہ والے معاملے جو ہیں ان پہ عمل کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے۔